قرآن اور سنہ کے اصول کے مطابق جو چیز پیش کر دو کہ میری جان میں سینے پر لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کی خاطر میں پھانسی پر جھولنے کے لیے تیار ہوں، گولی کھانے کے لیے تیار ہوں، ڈیبیٹ تو دور کی بات ہے۔ اخبار احاد میں صحیح بھی ہیں، منقطع بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، معضل بھی ہیں، اور مقطوع بھی ہیں، معلل بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں۔ اس مناظرے کے اندر کوئی بھی دلیل پیش کریں تو وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہونی چاہیے۔ مثال کیا ہے قطعی دلالہ؟ قطعی دلالہ کا مطلب یہ ہے جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں وہ اپنے معنی بیان کرنے کے اندر مبہم نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے قرآن سے ایسی آیت پیش کرنی ہے جس سے محمد رسول اللہ کے رسول ہونا ثابت ہوں، اور آپ اگر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا یا ان کو کوئی نبوت نہیں دی گئی، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نفی ثابت کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قطعی دلالہ۔ قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے ایسی دلیل کہ جو اپنے ثبوت کے اعتبار سے رفع نہ کی جا سکتی، اس کو ریفیوٹ نہ، irrefutable argument، ڈیفینیٹو ایبسولوٹ آرگومنٹ، ایسا آرگومنٹ پیش کرنا ہے۔ تو یہ قطعی دلالہ اور قطعی ثبوت کے اصول پر دلیل آئے گی سامنے۔ نمبر 1 دلیل سورس فار ریفرنسز، یعنی اپسٹمولوجی کیا ہوگی، اس کی علمیات ہے یا جو اس کے مسلمات ہے یا اس کے ماخذ ہیں، مصادر ہیں، مشتقات ہیں، مخارج ہیں جہاں سے ریفرنسز نکلیں گے، کہاں سے ہم بات کریں گے، وہ میری شرط کے مطابق تھی قرآن اینڈ صحیح حدیث اونلی۔ آگے اس پر بحث چلے گی۔ شرط جس کے اوپر ایشو تھا وہ تھا قرآن اور صحیح حدیث ہی صرف ریفرنس کے طور پر پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ تاریخ، تفسیر اور کچھ اور کتابیں بھی ریفرنس کے طور پر یہ پیش کر سکتے ہیں۔ جس پر میرا اعتراض یہ تھا کہ ایک مسلمان کے نزدیک اور خاص طور پہ میرے نزدیک مجھ سے بات کر رہے ہیں صرف اور صرف قرآن اور سنہ حجت ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ دوسری کتابوں سے بھی ریفرنسز وغیرہ پیش کریں گے، میں نے یہ کہا وہ میرے نزدیک اتھینٹک نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، اور آپ نے مجھ سے اس چیز کے اوپر مطالبہ کیا۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں تفسیر، تاریخ اور یہود و نصارہ کی کچھ کتابیں پیش کروں گا۔ میں نے اس پہ کہا وہ میرے نزدیک اتھینٹک نہیں ہیں۔ ٹائم دے تو میں کچھ ریفرنسز پیش کرنا چاہتا ہوں اسکالرز کے، جس میں وہ بیان کریں گے کہ مسلمانوں کے نزدیک حجت کیا ہے، اور یہ کلاسیکل اسکالرز کے میں 2-3 حوالے پیش کروں گا۔ کیا میں ثابت کروں گا کلاسیکل اسکالرز سے کہ ان کے نزدیک قول صحابی بھی حجت نہیں ہے؟ قول صحابی بھی، قول صحابی، مفسر نہیں، تاریخ نہیں، قول صحابی، صحابی کا قول حجت نہیں ہے، اور 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے ثابت نہیں کروں گا، آج سے 1000 سال پہلے کا ثابت کروں گا۔ حوالہ دینے لگا ہوں ترتیب سے۔ سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک حجت کیا ہے جب کنفلکٹ آ جائے، جب ایشو آ جائے، ہمارے نزدیک اوریجنلی حجت کیا ہے۔ سورہ نساء کی چیپٹر 4 ورس 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے ایمان والو، مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور تم میں سے جو اہل الامر ہیں، یہ مختلف جگہ پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، حدیث میں بھی مختلف جگہ پر ہے، امیر ہے، اطاعت ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں کنفلکٹ ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو فیصلہ کن جو چیزیں ہوں گی، باٹم لائن جو فیصلہ کریں گی حتمی، اتھینٹک، ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کا رسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کی سنت، ان کی صحیح مستند مرفوع متصل حدیث یا ان کی مستند سنت، اس سے پتہ چلے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ قرآن نے ہمیں صرف 2 چیزوں کا بیان کیا۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور مستدرک حاکم میں بھی غالباً آئی ہے، لن تزلوا ما ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ اگر تاریخ اور تفسیر پیش کرنے کے بعد اگر میں اس کو ریجیکٹ کر دوں تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، میرا بھی ضائع ہوگا، تب تک جب تک وہ قرآن اور سنہ کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ ہم تو بائبل کی ان باتوں کو ماننے کے لیے، تاریخ تو تفسیر تو پھر مسلمان اسکالرز نے لکھی ہے نا، ہم بائبل کی، ویدوں کی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں جو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبین، سملیرٹیز اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق پوری اترتی ہیں، ہم ان کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جو نہیں ملتی، مثال کے طور پہ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا اسرائیل لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، اسرائیلیات کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، خاموش، توقف، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہوں، پتہ نہیں نہ ہوں، ہمیں نہیں پتہ۔ اب اس کی مثال یوں سمجھے، عیسائیوں کے سامنے میں اپوکریفل کتابوں کی حوالے پیش کرنا شروع کروں، اپوکریفا کے، وہ کتابیں جن کو وہ اپوکریفک کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں، چاہے کیتھولک ہوں یا آرتھوڈاکس یا پروٹسٹنٹس، وہ نہیں مانیں گے ان کتابوں کو، حالانکہ ہے بائبل کا حصہ مانی جاتی ہیں وہ۔ اسی طریقے سے میں سمرتیز کے اندر سے پراناس کا حوالہ پیش کروں، کتنے سناتنی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پراناس کو نہیں مانتے، ہم صرف شروتیز کو مانتے ہیں، سمرتیز کو مانتے نہیں،
हालांकि उनकी सुबह शाम उनके स्वामी वो किताबें पेश कर रहे होते हैं, टुन्नी यहां आते हैं, शोर डालना शुरू कर देते हैं कि जनाब हम इन किताबों को नहीं मानते। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि जिन किताबों को पेश करके कुछ हुज्जत दी जा रही हो वो पूरी उम्मत के अंदर ऑथेंटिक मानी जाती हैं। मुजतमाए उम्मत का आपने जो दावा किया था वो आपने साबित करना था, मैंने नहीं, क्योंकि वो दावा आपका था। फिर भी अब आपको मैं चंद हवाले देने लगूं। ये आपके सामने 505 के मुतवफ़ा यानी चौथी और 5वीं सदी के इमाम है, इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गज़ाली, 505 के मुतवफ़ा। उनकी किताब है अल मुस्तस्फ़ा मिन इल्म अल उसूल। आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी मगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। इसका सफ़ा 405 है। जिल्द आपने देख लिया जी, जिल्द कौन सी है जी? जिल्द है अल अदिल्ला की दूसरी जिल्द, अज्जुज़ुस्सानी अल अदिल्ला, दलाइल क्या होंगे। ये दोबारा देख लें जरा, मैंने वीडियो में हाईलाइट किया, पब्लिक देखे। अल अदिल्ला, अल अदिल्ला का मतलब ये है इस्लाम में सोर्सेज और रेफरेंस के तौर पर कौन सी दलीलें मानी जाएंगी। अल अदिल्ला, आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल, ठीक है जी। उसकी दूसरी जिल्द के अंदर पेज 450 के ऊपर पहली असल है, और मिन उसूल मौहुमा कौलुस सहाबी। अब नीचे क्या लिखते हैं, सहाबी का कौल क्या हुज्जत है, उस बारे में लिखते हैं वक़द ज़हबा कौमुन इला अन्ना मज़हब सहाबी हुज्जतुन मुतलकन। एक कौम ये कहती है मजहब सहाबी का हुज्जत है, यानी सहाबी जो बात कर रहा है चूंकि वो नबी का स्टूडेंट है तो उसकी बात भी हुज्जत होगी मुतलकन। व कौमुन इला अन्नहु हुज्जतुन इन खालफल क़ियास, कहते हैं अगर एक जगह पर क्यास आ जाए, एक जगह पर सहाबी का कौल आ जाए, सहाबी के कौल को माना जाएगा, क्यास छोड़ दिया जाएगा। व कौमुन इला अन्नल हुज्जत फी कौली अबी बकर व उमर खासा, और वो कहते हैं नहीं नहीं सारे सहाबा का कौल हुज्जत नहीं है, सिर्फ अबू बकर और उमर का कौल हुज्जत है। और उसकी वो दलील क्या देते हैं, अगले सफ़े पर आ जाए, पेज 451 के ऊपर, लिकौली ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के कौल का, इक्तदौ बिल्लज़ीना मिन बअदी, कि मेरे बाद सहाबा की इत्तबा करना, और वो मुराद थी अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि खुलफाए राशिदीन की मेरे बाद सुन्नत को पकड़ना। तो वो कहते हैं उनकी हुज्जत जो है वो हम पकड़ सकते हैं। अगली कौल वो बताते हैं, वह कौमुन, सेकंड लाइन में, इला अन्नल हुज्जत फी कौलिल खुलफाए राशिदीन इज़्ज़त तफकू, कहते हैं चौथा मजहब ये है कुछ लोगों का कि हुज्जत सहाबा के कौल को माना जाएगा जब उनका कौल खुलफाए राशिदीन के मुताबिक हो। अब नीचे जितनी येलो इबारत है ये इमाम गज़ाली का रद्द है उसके ऊपर। वो कहते हैं वल कुल्लु बातिलुन इंदना, ये सारी की सारी बातें हमारे नजदीक बातिल हैं। सहाबी का कौल इस्लाम के अंदर हुज्जत हो ही नहीं सकता। आगे देखे वो क्या कहते हैं, या उससे इख्तलाफ हो सकता है। फ़इन मन यजूज़ु अलैहिल गलत वस्सहवु वलम तुस्बित इस्मतुहु अन्हु फला हुज्जत फी कौलिही, जो बंदा जिसके अंदर गलती, नुकसान और जहालत का उनसर पाया जाता हो, उसकी इस्मत का दावा ना साबित हो, फला हुज्जत फी कौलिही, उसके कौल में कोई हुज्जत नहीं है। आगे कहते हैं फ़कैफ़ युहतज्जु बिकौलिहिम मा जवाज़िल खता, जिसमें गलती का इम्कान हो उससे हुज्जत कैसे पकड़ें। वकैफ तुदआ इस्मतुहुम मिन गैर हुज्जतिन मुतवातिरतिन, जब उनकी इस्मत वो मासूम ही नहीं है उनसे हुज्जत मुतवातिरा कैसे पकड़ सकते हो तुम उसके बगैर। वकैफ यतसव्वरु इस्मतु कौमिन यजूज़ु अलैहिमुल इख्तिलाफ, और तुम तसव्वुर भी कैसे कर सकते हो उनसे दलील पकड़ना जिनके बारे में मासूमियत का अकीदा नहीं है। वकैफ यख्तलिफुल मासूमान, और अगर उनका इख्तिलाफ जायज ना होता तो दो सहाबा में इख्तिलाफ कैसे करके होता। ये 505 के मुतवफ़ा है। आगे चलें, दूसरा हवाला ले लें। सहाबी की बात कर रहा हूं, इमाम तो फिर किस खेत की मूली है बात के, मैं खुल के कह रहा हूं सहाबा के कौल हुज्जत नहीं आका दो जहां के बाद। रफ़उल मलाम अन आइम्मतिल आलाम, शेख अल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया अल हर्रानी, इस किताब उर्दू में ये किताब है, इसकी अरबी है रफ़उल मलाम अन आइम्मतिल आलाम, आपको मिल जाएगी उर्दू के अंदर भी। और ये मुतवफ़ा है 728 के, यानी 8वीं सदी हिजरी के क्लासिकल स्कॉलर्स में से हैं। इसके सफ़ा 28 के ऊपर आ जाएं, पूरा वाक़या पढ़ें। कहते हैं क्योंकि दलाइल शरइया में गलती वाक़या होने की निस्बत, तवज्जो कीजिएगा, मुफस्सिरीन और मुर्रिखीन कौन होते हैं, यानी कमेंटेटर्स एंड हिस्टोरियंस कौन होते हैं, स्कॉलर्स इस्लाम के, क्या कहते हैं, सेकंड लाइन देखें, क्योंकि दलाइल शरइया में गलती वाक़या होने की निस्बत, यानी कुरान और सुन्ना में गलती होने की निस्बत कंपैरेटिवली आराए उलामा में गलती हो जाने का ज्यादा इम्कान है। इस्लामिक स्कॉलर्स गलती ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह के बंदों पर अदिल्ला शरिया हुज्जत है, ना कि आराए उलामा। इसीलिए मुसलमानों के ऊपर हुज्जत सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्ना या अल्लाह की राय अदिल्ला शरिया होंगे, ना कि उलमा की आरा। आगे वो क्या कहते हैं, अगर दलील शरी के मुकाबले में कोई दूसरी दलील शरी वाक़े ना हो तो उसमें गलती का एहतमाल नहीं हो सकता। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर कुरान और सुन्ना किसी जगह पर खामोश है, उलमा कोई राय देते हैं, मुफस्सिर देते हैं, हमें मानने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन आरा उलमा की ये हालत नहीं है। अगर इसी तजवीज पर अब तक अमल दरामद ना, आगे चलते हैं, इसको स्किप करते हैं। दो आखिरी लाइनें में पढ़ाना चाहता हूं। इन्होंने जिक्र किया कि एक शख्स, अब्दुल्ला बिन अब्बास की इन्होंने वाकया जिक्र किया, एक शख्स ने एक मसला दरियाफ्त किया अब्दुल्ला बिन अब्बास से।
उसके जवाब में उन्होंने एक हदीस बयान फरमाई, उस पर उस शख्स ने कहा अबू बकर और उमर ये कहते हैं, यानी मुफस्सिर और मुअर्रिख की बात नहीं की, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, पहले खलीफा और दूसरे खलीफा, सहाबी, बदरी, अशरा मुबशरा, बैत रिज़वान, ठीक है जी, बड़े बड़े सहाबी क्या कहते हैं जी, इब्न अब्बास कहते हैं मैं करीब है तुम पर आसमान से पत्थर बरसने लगे, लास्ट 2 लाइनें, मैं कह रहा हूं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहते हो अबू बकर उमर ने कहा। यह रिवायत नकल की इब्ने तैमिया ने। यहीं पर बस नहीं नाज़रीन, आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के एक मुजद्दिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी साहब की किताब मारूफ हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उसमें आ जाते हैं जनाब, आपको पहली जिल्द है अल-किस्म अल-अव्वल, मबहस है 5, मबहस अल-बिर्र वल इस्म, नेकी और बुरा, वहां शिरक के टॉपिक के अंदर आते हैं, कहते हैं वमिनहा, शिरक क्या है, वमिनहा, शिरक की किस्म में से ये है, इन्नहुम कानू यत्तखिदून अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उन्होंने पादरियों और पिछले लोगों ने अपने उलमा को रब भी तो बना लिया हुआ था कि उनकी बात पर चलते थे, हमारे लिए ये हुज्जत है, हमारे लिए फलां मुफस्सिर हुज्जत है। वो कहते थे काना यअतकिदूना अन्नमा अहल्लहु हाउलाई हलालुन ला बास बिही फी नफ्सिल अम्र व इन्नमा हर्रमहु हाउलाई हरामुन युआखिदूना बिही फी नफ्सिल अम्र। जिस चीज को इनके उलमा हलाल करते थे उसको हलाल कर लेते थे, जिनको वो हराम करते थे उनको हराम करना शुरू कर देते थे। नीचे क्या कहा, तवज्जो कीजिएगा, नीचे कहते हैं अम्मा निस्बतुहा इलल मुज्तहिदीन मिन उम्मतिही फबिमाना रवायतिहिम ज़ालिका अन शर्र मिन नस्स शारि अव इस्तिंबात माना मिन कलामिही। अगर कोई उलमा की कलाम को हुज्जत मानेगा तो उसकी मुराद यही होगी कि उसने शरीयत से इस्तिदलाल किया है। ये 3 हवाले मैंने दिए हैं, इसके अलावा मेरे पास दर्जनों हवाले हैं, वक्त की किल्लत की वजह से मैं वो हवाले नहीं दे रहा। ये जिन बंदों की बात की है ना, ये नाबगा रोजगार लोग हैं, इमाम गजाली, इब्न तैमिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी। ये जितना मदारिस आपको जितना इल्म बरे सगीर के अंदर फैला दिखाई दे रहा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी का है। ये जितना फलसफा इल्म कलाम आपको फैला दिखाई दे रहा है, इस्लामिक थियोलॉजी, इमाम गजाली का है। ये जितना तकाबली मुनाजरा और तकल्लुम मुतकल्लिम के तौर पर मंतक के रद में और साइंस के रद में दिखाई दे रहा है, ये आपको इब्न तैमिया की वजह से। 3 ऐसे बंदों के नाम देकर मैंने आपके सामने रखा है कि कौले रसूल और कौले अल्लाह के सामने किसी मुफस्सिर और मुअर्रिख को हुज्जत हम नहीं मानेंगे। आपने कोई तारीख, कोई तफसीर पेश करनी है, शौक से करें, मुझे कोई हर्ज नहीं, मगर उसकी सनद और उसका जो ताल्लुक है वो कुरान और सुन्ना के ऊपर मिलता होगा तो मैं मानूंगा। आप मनाजरे के अंदर आप तारीख तफसीर पेश करेंगे, मैं एंड पे कह दूंगा मैं नहीं इसको मानता, जब तक वो मरफू मुत्तसिल और सही सनद के साथ पूरी ना उतरती हो, तो वक्त बच जाएगा। बाकी जो आपने कहा कि मैं यहूद नसारा की किताबें पेश करूंगा, आपकी आइडियोलॉजी वाज़े करें, मैं उससे साबित करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, उन उसूलों के ऊपर। ना आप क्रिश्चियन हैं, ना आप हिंदू हैं, ना आप सिख हैं, ना आप मुल्हिद हैं, ना आप, मुझे नहीं पता आप क्या हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी रखें, मैं उसके मुताबिक उन उसूलों पर नबी पाक मैंने जो उलमा के हवाले पेश किए हैं आपकी चाहत और तमन्ना पे पेश किए हैं। मेरे नजदीक तो कुरान की आयत मैंने एक पेश कर दी थी, सूरह निसा की 59, आपने कहा था किसी आलमे दीन की बताएं, हाँ जी, तो उस पर मैंने आलमे दीन पेश किए हैं और 3 बाबे पेश किए हैं, बाबे, और बताया है कि ये 3 वो हैं जिनसे इस्लाम की तारीख के दरवाजे खुलते हैं। इमाम गजाली, हाँ जी, इमाम इब्न तैमिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी, मैंने वो पेश किए थे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि जनाब आप नहीं मानते क्या तौरात वगैरह को या उलमा की बात को। मैंने मानने की बात नहीं की, मैं कह रहा हूं उसूल। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई कहेगा जी मैं मदरसे का फारिग हूं, अल्लामा हूं, फहामा हूं, हम उसकी बात को मानेंगे, नहीं। कुरान में अल्लाह कहते हैं कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील की बुनियाद पेश करो। कौन सी दलील है तुम्हारे पास? किसी आलमे दीन की बात भी हम मानेंगे तो उसूल पर मानेंगे। यही तो सूरह निसा की आयत 59 में बयान कर रहा हूं। आप एक चीज बयान कर रहे हैं कि उलमा से पूछ कर चलो। मैंने कब कहा है? जो आपने सूरह नहल की आयत पेश की कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सूरह नहल की आयत है कि सवाल करो अहल ज़िक्र यानी उलमा से, स्कॉलर से, जानने वालों से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म ना हो तो। इसमें कोई शक नहीं, एक्सपर्ट से पूछा जाएगा। मगर क्या मिसाल के तौर पर मैं जाता हूं एक बंदे के पास जो मुझे बैठकर कहता है कि जनाब मैं डॉक्टर हूं, तो मैं उसकी डिग्री नहीं चेक करता, मैं उसकी दलील। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर के पास जाता हूं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर आगे से कहता है चूंकि मैं डॉक्टर हूं तुम्हारा इलाज के लिए मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी। एक जाहिल से जाहिल बंदा कहता है डॉक्टर साहब दर्द पेट के अंदर है, आप टांग काटने की बात कर रहे हैं। वो कहता है चुप, डॉक्टर मैं हूं या तुम हो, डिग्री मेरे पास है या तुम्हारे पास? बंदा कहता है सर 2 हाथ जुड़े हैं, इतनी अकल मुझ में भी है। इस सिनेरियो के अंदर बात हुई। चौथी बात आपने यानी अगली बात आपने की, सूरह यूनुस की आयत आपने पढ़ी गालबन 92-98, यस, फ़इन कुंत फ़ी शक्किन, ठीक है, मिम्मा नज़्ज़लना, जो हमने आप पर नाजिल किया है उसमें अगर आप शक के ऊपर हैं तो अहले किताब से जाकर पूछें, वो इसकी तस्दीक आपको बताएंगे क्या मामला। वो पूरी आयत आगे चलती है।
याद रखें कुरान में शराइत के मामलात के अंदर कुछ ऐसे तालीक बिलमहाल यानी ऐसी शराइत लगाई गई हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह पर कहा कि इनसे कहो कि अगर रहमान का बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी पूजा करता। एक जगह पर अल्लाह ताला ने 25 अंबिया का नाम लेने के बाद कहा, 25 अंबिया का, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं, नबी अंबिया का नाम लेने के बाद कहा कि अगर ये शिरक करेंगे तो इनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, जबकि सबको खबर है कि अंबिया शिरक नहीं करते अपनी असल के अंदर, मगर वहां यह चीज लगाई गई कि अगर शिरक किया लयहबितन्न अमलहुम, इनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ऐसी शर्त लगाई जा रही है जो नहीं है। पहला पॉइंट ये है इस जो सवाल के अंदर जो आपने रखा कि वो उससे गए थे पूछने के, अहले किताब से पूछने का कहा, तो पहली बात यह है यहां जो शर्त लगाई गई है यह तालीक बिल महाल है कि अल्लाह के रसूल को कहा गया आप तो बिल औला शक में नहीं पढ़ सकते, यानी आपके जरिए से उम्मत को यह बताया गया कि अगर किसी चीज का शक है तो कर लो, तस्दीक कर लो। नंबर एक ये है कि तालीक बिल महाल वहां पर रखा गया शर्त के जरिए। दूसरा जवाब उस आयत का जनाब ये है कि मुझे कोई एक हवाला बताएं, एक हवाला जहां अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद, नबूवत आने के बाद अहले किताब से तस्दीक के लिए पूछा हो, वही आने के बाद, तस्दीक आने के बाद किसी अहले किताब से पूछा हो जाकर मुझे एक हवाला बता दे। गिन के एक हवाला निकालते हैं वर्का बिन नौफल का, वर्का बिन नौफल का। वहां भी नबूवत की तस्दीक नहीं हुई थी, जो वाकया हुआ था उसकी कैफियत के ऊपर बात हुई थी और बयान किया गया था कि जो तुम्हारे पास है ये है, वरना अल्लाह के रसूल ने किसी दफा भी यहूदियों के साथ ये चीज पूछी नहीं है कि मेरी तस्दीक कर दो, बल्कि उनके सामने हवाले रखे हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो आपको ऐसे जानते हैं जैसे आपके बच्चों को, अपने बच्चों को जानते हैं। तो एक 3 जवाब इसके जो आयत आपने रखी है उसके हमारे सामने मौजूद हैं। उसके बाद आपने कहा कि आप आलिम के कौल को कैसा इनकार कर सकते हैं कि कुरान में लिखा है कि आलिम की बात माने। ये मैं इस पर बात कर चुका हूं, आलिम का कौल बिला दलील हम नहीं मानते, सिंपल, इतनी सी बात है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपने अगर डिबेट करनी है तो रेफरेंस देखें। मैं आपको उसूली बात बता देता हूं, मुनाजरे के अंदर मंतकी तौर पर, मुनाजरे के अंदर मंतकी तौर पर उसूल ये चीज होती है कि दलील मुखासमत पेश की जाती है। मुझे नहीं पता आपको इसका इल्म है कि नहीं, दलील मुखासमत, काउंटर आर्ग्यूमेंट। मिसाल के तौर पर आप मुझे चुप करवाने के लिए कुरान और सही हदीस से दलील देंगे तो मैं उसको मानूंगा। आप बाइबल की पेश करेंगे, मैं नहीं मानता। आप तुरात पेश करेंगे, मैं नहीं मानता। आप अपना अनाजील अरबा पेश करेंगे, मैं नहीं मानता। वेदे पे मैं नहीं कुरान और सुन्ना मानूंगा। इसे कहते हैं दलील मुखासमत। आपकी आइडियोलॉजी चूंकि क्लियर नहीं है, लिहाजा मैं उसमें ऐड नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं आप सनातनी हैं, मैं वहां वेदास ऐड कर लेता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना उसूली तौर पर मैं वेदास से साबित कर दूंगा। आप बाइबल रख, आप कहें मैं क्रिश्चियन हूं, मैं वहां पर बाइबल रखूंगा और बाइबल को रखकर मैं साबित कर दूंगा उसूलों के मुताबिक कि सच्चे नबी की क्या शराइत है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे या नहीं। आप ह्यूमनिस्ट हैं, आप एग्नोस्टिक हैं, आप फ्री थिंकर हैं। आप उन उसूलों के मुताबिक साबित कर दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे थे, मैं उन्हीं उसूलों के मुताबिक साबित कर दूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आइडियोलॉजी रखें जिसको दलील मुखासमत कहें। अब मैं आपके मुकाबले में पेश करूं तो करूं क्या? लिहाजा मैंने शॉर्ट किया इस चीज को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत के लिए हमारे नजदीक हुज्जत जो है वो कुरान और सुन्ना है। तारीख, तफसीर, सीरत मुमकिन है कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो तो मुझे मानने में कोई इनकार नहीं है। रवायतें भरी पड़ी हैं। आप अपनी स्ट्रीम्स के अंदर कुरान की आयत खोलते हैं जनाब और पूरी पूरी स्ट्रीम करके कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नहीं। आप मेरे सामने वो पेश कर दीजिएगा, आप हदीसें पेश कर दीजिएगा। आपके पास तो इतनी हदीसें हैं और आपके साथी भी हैं सपोर्ट करने के लिए। वो सारा कंटेंट इकट्ठा करें, ले आए। तारीख और तफसीर से ऊपर की बात चली गई है। शर्त है जिसके ऊपर डेडलॉक लगा है और वो है एपिस्टेमोलॉजी मुसलमानों की क्या है इस्लाम को समझने के हवाले से। जो चीज का दावा आपकी अपनी किताब करती है और ये क्लेम करती है कि ये वहां मौजूद है, तो मैं आपसे डेफिनेटली वो सवाल करूंगा कि आप मुझे दिखाएं कि ये वहां कहां और किस जगह पर मौजूद है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं मुझे दिखाने से? आमिर अख्तर साहब, इसका जवाब दें। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इसको मैं क्लियर करता हूं, साथ दूसरी 2-3 चीजें जो हैं उनको भी ले लेते हैं। ठीक है जी, उन चीजों को भी मैं दुरुस्त कर देता हूं और इस चीज का भी मैं जवाब दे देता हूं। जो सवाल आपने आखिर में किया वैलिड है, मगर ये तब, चले मैं उसको लास्ट में लेता हूं, लास्ट को लास्ट में लेते हैं। आपने कहा क्या जो तफसीरों के आपने हवाले दिए क्या वो उलमा अहल नहीं थे, क्या वो निकम्मे थे, क्या आप निखट्टू थे, क्या आप उनको दलील और हुज्जत के तौर पर नहीं मानते? मैंने आपको ये चीज कही कि कुरान में कहीं भी डिग्री अहलियत नहीं है, अहलियत है दलील।
कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे को दलील देनी होती है, वो दलील देगा, कुरान में लिखा हुआ है। सिंपल उसूल नंबर ए, अगर मुतलकन उलमा का कुरान में आप जिक्र ये दिखाएं कि उनसे सीखो, तो उन्हीं उलमा रिबियों और उलमा यानी उनकी कैटेगरी में कुछ लोगों का यहां भी ऐसे भी जिक्र है। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उलमा और अहबार को और रिबियों को उन्होंने अल्लाह के अलावा रब बना लिया था, जिसको वो हलाल कहते थे हलाल कहते थे, जिसको वो हराम कहते थे हराम कहते थे। वहां उलमा की मजम्मत की गई। एक और जगह पर कहा इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबानी लयाकुलून अम्वालन नास, कसीर उलमा जो थे किनके अहले किताब के, वो झूठ बोलकर लोगों का माल खाते थे। कसीरम मिनल अहबारी लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, झूठ बोलकर लोगों का माल। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना सारे के सारे को एक कैटेगरी के अंदर रख दे। कुरान में कई जगह पर उलमा की तौसीफ भी आई है और कई जगह के ऊपर उन पर तनकीद भी आई है। मिसाल के तौर पर एक आलिम दीन इल्म को छुपाना शुरू कर दे तो कितमाने इल्म के ऊपर अल्लाह ने लानत कहा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहते हैं तुम इल्म को मत छुपाओ इस हाल में कि तुम जानते हो, यानी कितमाने इल्म उलमा की उस वक्त की सिफ्त भी हो सकता है और आज भी हो सकता है, उनके ऊपर मुजम्मत की गई है। इसका मतलब यह है कि मुतलकन डिग्री ले लेना या अल्लामा फहामा बन जाना अहलियत का हामिल नहीं है। दाढ़ी रखकर जुबा पहन लेना यह इस्लाम में अहलियत नहीं है। हमारे यहाँ आमतौर पर चूंकि दाढ़ी रखकर जुबा पहनकर बड़ी सी पगड़ी पहनकर समझते हैं कि यह ऑथेंटिक है, इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। पापाइयत या पंडियत या रिबियत इस्लाम के अंदर किसी किस्म की थियोक्रेसी नहीं है। यही वजह है कि एक आम सा जाहिल बंदा भी इस्लाम की तबलीग कर सकता है जिसको एक आयत पता है। बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म में अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी किसी को पता है वो आगे पहुंचाए। और मुतअद्दिद जगह पर है कि कोई एक हदीस मुझसे कोई चीज मेरी सुन्नत सुनता है उसको आगे पहुंचाए, क्योंकि बाज दफा पहुंचाई जाने वाला बंदा ज्यादा फकीह होता है जिससे पहुंचाया जा रहा है, यानी उस्ताद से ज्यादा शिगिर्द बेहतर हो जाता है, अहलियत रखता है दलील की बुनियाद के ऊपर। तो ये एक समझ ले अहलियत इस्लाम में क्या है। तीसरी चीज आपने पेश की कि तफसीर और तारीख को आप क्यों नहीं मानते जबकि उसमें भी कुरान की आयतों ये चीजें पे वो मैं आप उसूल समझे, आप फर्क नहीं समझ, यहाँ जो गैप है ना वो समझे। अगर आप रियली ऑनेस्ट सिंसियर हैं उस गैप को खुदारा ग्रिप करें जो मैं बयान कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया में किसी चीज को नहीं मानता सिवाय कुरान और सुन्ना के। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की हर चीज को मानने के लिए तैयार हूं जो कुरान और सुन्ना के उसूल पर पूरी। सिंपल ये है, ये वो उल्टा रिवर्स गैप है जिसको आप फिल नहीं कर पा रहे। यानी मिसाल के तौर पे बाइबल की, वेदास की, सिखों की किताबों की, दुनिया जहान की किसी किताब की बात जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगी मुझे मानने में कोई यार नहीं है। तफसीर तारीख की कोई ऐसी बात जो सनदन ठीक हो, मरफू हो, मुत्तसिल हो और कुरान और सुन्ना के साथ ना टकराती हो। चार चीजें, सनदन, मरफू, मुत्तसिल सही, और उसके बाद चौथी चीज क्या, कुरान और सुन्ना के साथ ना टकराती हो, मुझे उसके मानने में कोई हर्ज नहीं। यही एपिस्टेमोलॉजी मैंने आपको यहां भी बयान की है मुख्तलिफ उलमा के यहाँ। इब्ने तैमिया का हवाला रफ़उल मलाम अन अइम्मतिल आलाम से मैंने पेश किया सफ़ा 28 से, जिसमें वो लिखते हैं कि उलमा की आरा को तरजीह नहीं दी जाएगी बल्कि उलमा की आरा यानी स्कॉलर्स की आर्ग्यूमेंट्स को या उनकी इंटरप्रिटेशंस को परखा जाएगा कि आया वो कुरान और सुन्ना के करीब कौन सा है। इसीलिए जब फुक़हा के यहाँ इस्तदलाल की बात आती है तो कहा जाता है कि इसका इस्तदलाल, इसका इस्तखराज और इसका इस्तंबात या इसका जो इन्फर कर रहा है दलील से, वो दलील कुरान और सुन्ना के अकरब इलल हक यानी अकरब इलल हक है, असह है, अर्जह है, अकरब है। ये सीगे फिका के अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल इसलिए होती हैं कि बाज उलमा की आरा को रद्द कर दिया जाता है, बाज उलमा की राय को माना जाता है। अगर ये कह दिया जाए कि मुतलकन उलमा की राय को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में रख लगा, अगर मुतलकन उलमा की राय को माना जाए तो उलमा के अंदर तो कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है आपस में। एक आलिम कुछ कह रहा है स्कूल ऑफ थॉट फिका के अंदर, एक कुछ कह रहा है, फिका हम्बली, फिका हनफी, कैसे फैसला करेंगे? यही आयत मैंने पेश की थी सूरह निसा की आयत 59 कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर ईमानदार हो तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फैसला करने के लिए लौटाना है। ये उसूल था। यहां से आपको पता चल जाएगा कि तफसीर और तारीख की हैसियत मैंने क्या बयान की। मुतलक इनकार नहीं, मुक़य्यद इनकार है, मशरूत इनकार है, महदूद इनकार है। महदूद से मुराद ये कंडीशनल, ऐसा इनकार है कि जो चीज कुरान और सुन्ना से नहीं मिलेगी उसको मैं नहीं मानता। ये मेरा उसूल है, कुरान की आयत से पेश किया, उलमा की राय से पेश किया। आगे चलते हैं। आपने बड़ी प्यारी एक बात की, आपने कहा कि जो दावा आप करते हैं तो आप चूंकि मुसलमान हैं तो कुरान से उसको साबित, यानी कुरान ने एक दावा किया है नबी होने का तो आप उसको उसी से साबित करेंगे ना, आप दूसरी किताबों से कैसे इधर उधर। यानी जब मैंने आपको कहा कि आप अपनी आइडियोलॉजी रखें, आपने कहा मेरी आइडियोलॉजी रखने की जरूरत तब पड़े जब मेरा दावा हो।
दावा आपका है, आप अपनी चीज रखें, कोई मसला नहीं, मगर उस चीज को उसूल के तहत परखने पर, ये तो हम डिबेट में बात करेंगे ना, वो उसूली बात तो मैं डिबेट के अंदर रखूंगा। मगर अभी जो आपने बात की बिल्कुल ठीक की, मुझे इससे इत्तेफाक है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना कुरान के उसूलों के मुताबिक भी साबित करूंगा। और अगर आप अपनी आइडियोलॉजी सामने रखते हैं, नहीं रखते, आपकी मर्जी, मैं साबित करूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, चंद उसूलों के साथ, वो मनाजरे के अंदर आ जाएंगे, और मैं अपने उसूलों, कुरान और सुन्ना के उसूलों के मुताबिक साबित करूंगा। आपने कहा कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि उनसे पूछो, और अगर अल्लाह ने कह दिया उनसे पूछो, तो मैं हक बजानिब हूं, मैं आपसे पूछूं कि वो किन किताबों में लिखा है। बिल्कुल आप हक बजानिब हैं, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, मगर डिबेट के अंदर आप मेरे दलाइल के मुताबिक चलेंगे, जो मैं पेश करूंगा उन दलाइल के मुताबिक, और मैं आपके दलाइल के मुताबिक। अगर डिबेट में आप मुझसे ये पूछें कि कुरान की इस आयत में ये चीज लिखी है कि यहूदो नसारा से जाके पूछो, तो मैंने इसके 3 जवाब दिए हैं। यहां यहूदो नसारा से पूछने से मुराद ये नहीं कि लिटरली जाके पूछो, मुराद है तालीक बिल महाल, ना आपको शक होगा ना ये काम, मिसाल के तौर पे ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत के बारे में कभी शक ही नहीं हुआ। जब शक ही नहीं हुआ तो यहूदो नसारा से पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 2 मिसालें दी इस पर। जैसे अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह रहमान का वलद होता तो या मोहम्मद कह दो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। ना अल्लाह की औलाद होनी है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इबादत करनी है। दूसरी का पर अल्लाह ने कहा तमाम अंबिया अगर शिरक करें तो ला यहबितन अमालहुम, मैं इनके अमाल जो है ज़ाया कर दूं। ना अंबिया ने शिरक किया और ना उनके अमाल ज़ाया हुए। सिंपल बात है, ये उसूल है जिसके मुताबिक हमने परख रहे हैं। मगर फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपका बिल्कुल राइट है, मैं उन चीजों को साबित करूंगा उन किताबों से। मगर मसला ये है कि आपके लिए वो किताबें हुज्जत नहीं, मगर फिर भी आप मेरे मुकदमे को, मेरे दावे को समझने के लिए मुझसे पूछेंगे, मैं उन चीजों को बयान कर दूंगा। मगर टॉपिक ये नहीं है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं बाइबल और तौरात या कुरान की रोशनी में। अगर तो ये टॉपिक हो बाइबल और तौरात की रोशनी में, तो फिर तो आप बाइबल वाले सवाल मुझसे पूछें। मगर अगर हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं, टॉपिक ये हो, तो फिर ये ओपन डिबेट है। मैं कुरान और सुन्ना के उसूलों के ऊपर साबित करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं हैं, और आप अपने उसूल के मुताबिक जो कुरान और सुन्ना से आपने अखज़ किया है, आप साबित कर दीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं है। मैं आपके दलाइल को वहां पर उखाड़ कर रख दूंगा, आप मेरे दलाइल को उखाड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये सिंपल बात है। उम्मीद है आपको वो गैप समझ आया होगा जो पूरे इंसाफ और सिंसियरिटी के साथ मैंने रखा है कि मेरे कुरान और सुन्ना के उसूल के मुताबिक जो चीज पेश कर दो कि मेरी जान मैं सीने पर लगाने के लिए तैयार हूं, उसकी खातर मैं फांसी पर झूलने के लिए तैयार हूं, गोली खाने के लिए तैयार हूं। डिबेट तो दूर की बात है। के हवाले सिर्फ इस बात पे रखे हैं कि तुमने कहा कि चूंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं, तुम किसी स्कॉलर की, क्लासिकल स्कॉलर की किताब पेश करो। मेरे नजदीक अगर तुम पूछो कि क्या हुज्जत है, कहां से मैंने दलील ली है, तो मेरे सामने सूरह निसा की आयत 59 है, क्लियर। मैं तुम्हें पढ़ के सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो अमर वाले हैं, यानी उलमा, चलो उलमा मान लो, तुम इस वक्त के लिए कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं उलमा की बात भी मानो, मगर आगे आया है शर्त के साथ। शर्त है फा शर्तिया, आगे आ जाए फा अतफा इन शर्तिया, सॉरी फा अतफा आ गया। फा इन तनाज़अतुम फी शैइन, किसी अदना दर्जे में भी, शैइन नकरा है, किसी चीज में भी बाहम इख्तलाफ हो जाए, आपस में डिफर करो, फरुद्दूहु, अमर का सीगा इस्तेमाल हुआ है शर्त के बाद। इन के बाद जो फा आता है फेल के ऊपर, वो आता है जजा का, शर्त और जजा। तो शर्त थी कि अगर झगड़ा हो जाए तो उसकी जजा क्या होगी, उसका सोल्यूशन क्या होगा, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली, तो उसको लौटाना होगा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, साथ फिर शर्त लगा दी कि अगर तुम ईमान वाले अल्लाह और उसके साथ होगे। मेरी हुज्जत यह है कि जब भी कभी मुसलमानों के दरमियान या हमारे मुखालफत वालों के दरमियान इख्तलाफ होगा, हम फैसला जब करेंगे तो कुरान और सुन्ना से करेंगे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की बातों से। तुमने तारीख से हवाले पेश करने हैं, तफसीर से करने हैं, मुझे उसमें उलझन नहीं है। वो सिर्फ उस कंडीशन में जो है छोड़ने की बात कर रही है, और उस कंडीशन में सिर्फ कुरान और अहादीस को फॉलो करने की बात कर रही है। अतीउल्लाहि व अतीउर रसूल, ये उस कंडीशन में है जब तुम में बाहम इख्तलाफ हो जाए। तो अगर मैं ऐसा कोई हवाला पेश करता हूं जिसमें आपस में मुसलमानों का इख्तिलाफ है या उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, तब आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई इसमें इख्तिलाफ है, ये चीज मैं नहीं मानता। अगर उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है और आप मुझे इख्तिलाफ का रेफरेंस नहीं दे पा रहे और साबित नहीं कर पा रहे कि इसके अंदर इख्तिलाफ है, तब आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको डिनाई करें। वेरी सिंपल। जबरदस्त, बहुत वैलिड और बड़ा ही लॉजिकल पॉइंट रखा है। शुक्र है काफी देर के बाद कोई लॉजिकल पॉइंट आया। ये मैं चाह रहा हूं कि इसलिए फिर हमारी गुफ्तगू बढ़ रही है। सबसे पहले ये चीज समझें कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इख्तलाफ से पहले मैं उसको कह रहा हूं इख्तलाफ।
शरायत जो हैं वो हमेशा मैदान में उतरने से पहले रखी जाती हैं। मैदान में उतर के शर्त रखूंगा, तुम कहोगे पहले बताया नहीं। मैं अभी शर्त रख रहा हूं, और अगर तुम अपनी लिस्ट के अंदर इस शर्त को ऐड करते हो तो मैं ये भी मानने को तैयार हूं। चलो यहां लिख लो, अगर तुमने कोई ऐसा हवाला पेश किया जिसकी सनद, ये देखो ये तुम्हारे जिम्मे है, याद रखो दलील जो देता है उसके जिम्मे ये चीजें आएंगी। नंबर 1, तुमने मरफू सनद के साथ मुझे दिखाना है, मरफू सनद मुत्तसिल सही, तुम ये चीजें पेश करो, मैं मानने के लिए तैयार हूं। नंबर 4 कि मैंने रेफरेंस दिया, आप मुझे बोलेंगे इसका ये दिखाएं वो दिखाएं वो दिखाएं, नहीं हाँ, नहीं, क्यों? ये नॉट वर्क। ना मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों वर्क नहीं करेगा। सपोज करें कि मैंने आपको तफसीर के अंदर से एक चीज दिखाई कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, मौजूद है, आप ये कहते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, तो आपको ये साबित करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर जाता है कि आप इसको क्यों नहीं मानते। उसके लिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि आप ये दिखाओ वो दिखाओ, नहीं, मैं आपको सिर्फ हवाला पेश करूंगा, उस हवाले को गलत साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कुरान और अहादीस की रोशनी में। अगर आप उसको कुरान और अहादीस की रोशनी में गलत साबित कर देते हैं, कुरान और अहादीस के खिलाफ साबित कर देंगे, मैं उसको खुशी खुशी वापस ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे बायसनेस मत कीजिए कि मुझसे ही मांगेंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं हवाला दूंगा, वो आप पेश करेंगे। जो हवाला आप पेश करेंगे उसको गलत साबित करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं पेश करूंगा दलील। अच्छा अब सुन लीजिएगा, इसमें पता है गलती कहां पड़ रही है, जो इलॉजिकल एक अटेम्प्ट हो रही है, वो अटेम्प्ट ये हो रही है, हमेशा दलील का जो मुतल्लकात हैं और तफसीलात हैं वो दलील देने वाले पर होती हैं। जो दलील दे रहा होता है, मुदल्लिल जो होता है दलील देने वाला, उसके ऊपर सबूत होता है कि वो रेफरेंस, मिसाल के तौर पे इसको पब्लिक, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि कुरान की एक आयत में ये लिखा हुआ है, तो आप मुझे कहें कहां लिखा है, मैं कहूं तुम मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हो, कुरान तुम्हारा है कि मेरा है, निकालो, नहीं, आपको कुरान की वो आयत चैप्टर वर्स नंबर निकाल के मेरे सामने रखनी होगी। डिबेट के उसूल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल गपशप की बात नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब मैं आपको कह रहा हूं कि तारीख और तफसीर आप मेरे सामने पेश करेंगे, तो आप ओरिजिनल किताब से निकालेंगे, आप वो किताब अगर अरबी के अंदर है, अरबी के अंदर वो किताब निकालेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन मैं ट्रांसलेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता, नंबर 1, क्योंकि मैं अरबी पढ़ सकता हूं, आप अरबी के अंदर उसको निकालेंगे, मैं उसको पढ़ूंगा जो इबारत आप पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपको अरबी नहीं पढ़नी आती तो मैं आपके लिए गुंजाइश निकाल सकता हूं कि आप दोनों इबारतें सामने रखिएगा, क्योंकि दलील आप दे रहे हैं, आप उर्दू में पढ़ दीजिएगा, मैं उसको अरबी जो आप निकालेंगे उसको वेरीफाई कर दूंगा, आपका तो ट्रांसलेशन ठीक है, नंबर 1, ठीक है, एक तो ये चीज होगी। नंबर 2 ये चीज है कि आपने उसकी सनद पेश करनी होगी, मिसाल के तौर पे आपने बताना है किस मुसन्नफ की किताब है, कहां से ये छपी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ओरिजिनल किताब पूरी स्कैन करके दिखाई, प्रेजेंटेशन नहीं है, ओरिजिनल किताब, ठीक है, ओरिजिनल किताब का स्कैन दिखाया है। हाँ, कुरान की आयत है, हदीस है, उसका आप रेफरेंस कर सकते हैं, चैप्टर नंबर फलां, वर्स नंबर फलां, या हदीस है तो आप बता सकते हैं हदीस नंबर फलां, इंटरनेशनल नंबरिंग या सुना.com के नंबर के मुताबिक, उस पर हम सही पहुंच जाएंगे। मगर किताब के मामले के अंदर असल चीज ये होती है कि जब आपने डिबेट के अंदर उसूल पेश करना है, कोई दलील पेश करनी है, तो उस दलील की तफसीलात भी आपके जिम्मे है। मिसाल के तौर पे आपने दलील पेश करनी है, आपने उसका इस्तदलाल पेश करना है, आपने उसकी कतईयत साबित करनी है, आपने उसके कतई दलाला और कतई सबूत होना, यानी कतई दलाला और कतई सबूत क्या है, दलाइल, जैसे इमाम शातबी ने अल-मुवाफ़क़ात के अंदर लिखा है कि किस मनाज़रे के अंदर कोई भी दलील पेश करें तो वो कतई सबूत और कतई दलाला होनी चाहिए। मिसाल क्या है कतई दलाला, कतई दलाला का मतलब यह है जो दलील आप पेश कर रहे हैं वो अपने माना बयान करने के अंदर मुबहम ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो मैंने कुरान से ऐसी आयत पेश करनी है जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल होना साबित हो, और आप अगर ये साबित कर रहे हैं कि नहीं उनको कोई मौजज़ा नहीं दिया गया या उनको कोई नबूवत नहीं दी गई, तो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नफी साबित करनी है। इसको कहते हैं कतई दलाला। कतई सबूत का मतलब यह है ऐसी दलील कि जो अपने सबूत के एतबार से रफा ना की जा सकती, उसको रिफ्यूट ना, इररिफ्यूटेबल आर्ग्यूमेंट, डेफिनेटिव एब्सोल्यूट आर्ग्यूमेंट, ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश करना है। तो ये कतई दलाला और कतई सबूत के उसूल पर दलील आएगी सामने। नंबर 1 दलील, इस्तदलाल, उसकी कतईयत दलालत के एतबार से और उसके सबूत के एतबार से। और नंबर 4 जो मैंने आपके सामने रखा कि तफसीर और तारीख चूंकि सनदन खाली होती हैं, उसमें कूड़ कबाड़ रतबो याबे से इकट्ठा किया जाता है, इसराइलियात भी आ जाती हैं, लिहाजा हमें सनद चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कौल किसी मुफस्सिर का या इवन किसी सहाबी का पेश करेंगे जो मरफू और मुत्तसिल नहीं है, मैं राइट वे कह दूंगा कि मैं इसको नहीं मानता क्योंकि वो मरफू और मुत्तसिल नहीं है। मुझे उसके लिए कुरान से उसकी मुखालफत दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो चीज सनदन साबित नहीं है, मैं आपको यही तो बात, आप समझ नहीं रहे उस बेस को, कि जो चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू मुत्तसिल सनदन साबित नहीं है, उसको मैं राइट वे रिजेक्ट कर दूंगा, राइट अवे। मुझे उसको कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी दलील दिखाते हैं जो दलील हो
इस्तदलाल हो, कत्यु दलाला कत्यु सबूत हो, रेफरेंस की तफसीलात हो और उसके बाद सनदन मरफू मुत्तसिल सही साबित हो जाए, तो उसके बाद मेरा सबूत आएगा कि ये क्यों नहीं मानूंगा। इसकी मिसाल यूं समझे, आप मेरे सामने सही बुखारी की हदीस पेश करें, आप कहें सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी सनदन भी ठीक होगी, मरफू होगी, मुत्तसिल होगी, मैं उसको मान लूंगा कि ये दलील अब यहां, यानी इस तरह मानूंगा कि ये दलील आ गई। अब मेरे ऊपर होगा कि सही बुखारी की हदीस पर मैं ये कौन सी जरा दिखाऊं, क्या ये रवायतुल हदीस के इशू पर आता है या दरायतुल हदीस के इशू पर आता है, ये कुरान के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है या दूसरी मुतवातिर हदीसों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि हदीसों की मुख्तलिफ किस्में हैं, खबर अहाद, खबर मुतवातिरा। खबर अहाद जो है, जो खबर मुतवातिरा से टकराएं तो वो शुजूज पैदा करती हैं, इल्लत पैदा करती हैं, उसको कहते हैं इलल। वो इल्मुल इलल है जो इमाम शाफी ने रिसाला के अंदर लिखा है। ये वो टेक्निकलिटीज हैं, समय तक इन बेसिस को नहीं समझोगे आपको एपिस्टेमोलॉजी नहीं पता चलेगी ना। इसी तरह 30 साल और लग जाएंगे, आप दलाइल के ऊपर नहीं खड़े हो पाएंगे। आप कोई ऐसी दलील पेश मेरे सामने नहीं करेंगे, मैं उसको रिफ्यूट नहीं कर सकूंगा, मानूंगा दलील इस्तदलाल कत्यु दलाला कत्यु सबूत, उसका सनदन मरफू मुत्तसिल सही होना साबित हो जाए, मैं उसके बाद बताऊंगा कि मैं उस दलील को क्यों नहीं मानता। और अगर नहीं मानूंगा उसकी वजह बताऊंगा कि तजाद की वजह से नहीं मानता या इसकी दरायत की वजह से नहीं मानता या किस वजह से नहीं मानता। ये है सारी बात मेरे भाई दलील के हवाले से। मैंने कोशिश की है कि मैं तेजी के साथ आपको ब्रीफली बता दूं। मंतकी उसूल होते हैं कुछ डिबेट के, कुछ इल्मुल मनाजरात की किताबें हैं, डिबेट्स की कुछ बुक्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो तुम्हें बताया है वो बुनियादी 3 चीजें थी जो एक मुदल्लिल को, यानी जो दलील देने वाला है, आर्ग्यूमेंट पेश करने वाला, उसके लिए जरूरी है। तुम उस किताब का नाम, ये चीजें तुम मान गए, उसके साथ होती है मैं तुम्हें इसलिए एडवांस में बता रहा हूं कि तुम वहां पेश करोगे, वक्त जाया होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तुमने मिसाल के तौर, मैं सही बता रहा हूं, अभी लोग सुन रहे होंगे कई, तुम मुझे वहां पर तारीख या तफसीर पेश करोगे, मैं देखूंगा उसकी सनद ही नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूंगा मैं मानता ही नहीं इसको, वो आगे चली जाएगी, उस पर बात ही नहीं होगी। तुम मेरे साथ ये शर्त रखो कि तुम तफसीर और तारीख पेश करोगे, मैं उसको सब सिर्फ तब मानूंगा और उसके ऊपर उसको आर्गुमेंट का तौर पर लूंगा और उसके ऊपर जो जरा करनी होगी उसकी तहकीक के मुताबिक वो करूंगा। ये शर्त रख लो मेरे साथ, तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि तारीख और तफसीर तुम पेश करोगे, अगर वो मरफू मुत्तसिल सनद मुस्नद ना होगी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सनद के साथ ना होगा, तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा, उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा राइट वे, क्योंकि मैं कह दूंगा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। इसलिए तुम तैयारी अपनी उस हिसाब से करना। नंबर 2, अगर वो मरफू और मुत्तसिल हो जाएगी तो मेरे जिम्मे होगा कि मैं उसमें क्या जरा करता हूं और क्या चीज उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर मैं उसकी क्या तावील करता हूं, उसको कैसे तत्बीक पैदा करता हूं। मुझे कोई नहीं, तुम ये शर्त रख लो कि तुम उस आर्ग्यूमेंट से पीछे हट जाओगे, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम पेश कर लो। उसकी वजह बताता हूं, वजह क्या है। नॉर्मली डिबेट्स के अंदर जो सनातनी दोस्तों के सामने डिबेट होती है, चूंकि हमारे कई मुसलमानों को इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी का नहीं पता, ठीक है, पहले उसूल बता दूं डिबेट से कि वो किताबें हमारे नजदीक क्यों हुज्जत नहीं हैं। अगर वो पेश की जाएंगी मैं उनको राइट वे कहूंगा मैं इनको नहीं मानता और उसकी वजह बयान कर दूंगा क्यों नहीं मानता, ठीक है, जब तक वो उसकी बना, और मैं उनको बिल्कुल भी एड्रेस और अकोमोडेट नहीं करूंगा, एंटरटेन नहीं करूंगा। ये आप सर इतना बता दें कि आप अखबार अहद को मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूं अखबार अहाद, अगर सही सनद, सुन लो जरा, सुन लो सिर्फ अखबार, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसीलिए कहा थोड़ा बयान कर, मुख्तसर रख दे। अखबार अहाद में सही भी हैं, मुनक़ता भी हैं, मुरसल भी हैं, मुअज़्ज़ल भी हैं और मकतू भी हैं, मुअल्लल भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, मौज़ू भी हैं। अखबार अहाद सिर्फ रिवायत। आवाज फिर कम हो गई। तुम बताओ। नहीं, उनको अगर डिनाई करोगे तो किस बेस के ऊपर डिनाई करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ चलो ये आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ, इनमें से वो किस्में मैं अखबार, नहीं, उनको अगर डिनाई करोगे तो किस बेस के ऊपर डिनाई करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ चलो ये आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ, इनमें से वो किस्में मैं अखबार अहाद को इन उसूलों पर, रवायत और दरायत के उसूल पर डिनाई कर सकता हूँ। मैं उनको अखबार मुतवातिरा के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करने की वजह से रद्द कर सकता हूँ, मैं उनको कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट करने की वजह से रद्द कर सकता हूँ। हाँ ये मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। वो कॉन्ट्रडिक्शन आपको पेश करना होगा ना उस कंडीशन में, या नहीं करोगे ये बताओ। ऑब्वियसली पेश करूंगा, वो तो मेरे मैं सपोज करो कि मैं कोई जो है हसन हदीस पेश कर रहा हूँ, तो आप मुझे या तो कोई सही ऑथेंटिक हदीस पेश करेंगे या कुरान की आयत पेश करेंगे, तो वो मजरूह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं तारीख या तफसीर का कोई हवाला दे रहा हूँ और उसके खिलाफ आप मुझे कोई ऑथेंटिक अहादीस या तो फिर आप कुरान की कोई आयत पेश कर देते हैं और उसको गलत साबित कर देते हैं कि ये इसके खिलाफ है, तो उस कंडीशन में भी मेरी बात जो है वो बाय डिफॉल्ट गलत साबित हो जाएगी। अगर तफसीर नहीं सुने, मैं अगर आपको तफसीर और तारीख का हवाला दूंगा
تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے ऑथेंटिक दूंगा. लेकिन अगर अखबार अहाद में कोई आपको पेश करता हूं तो उस कंडीशन में आप मुझे किस कंडीशन से या किस तरीके से उसको डिनाई करेंगे, मुझे आपसे ये पूछना था. आपने कहा कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे, ठीक है. मैंने कहा वो अखबार अहाद है. अखबार अहाद कहते हैं ऐसी रवायत को जिसकी पूरी चेन के अंदर रावी एक से ज्यादा ना हो. मिसाल के तौर पर एक हदीस है, उसकी रिवायत करने वाले मिसाल के तौर पे अन नाफे अन इब्न उमर अन रसूलुल्लाह, ठीक है, 3 रावी हैं. बिल्कुल. तो वो खबर देने वाला एक ही शख्स मौजूद हो, उसी को अखबार अहाद कहते हैं. ये चीज मैं कह रहा था. इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा ऑथेंटिक रेफरेंस मैं पेश करता हूं आपको. मैं मुझे बता रहा हूं, बात का कह मैं दो बातें एक साथ कर रहा हूं आपके साथ, तो आपने उसको आपस में मिलाया, तो मैंने आपकी बात को जो है रख लिया, आपने डिफाइन कर दिया. अब मुझे आगे बढ़ने दें, फिर उसके बाद अपनी बात रखें. अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसी ऑथेंटिक रेफरेंस जो अपनी तरीके की अकेली रिवायत हो, उसके अलावा दूसरी कोई रिवायत उससे मुताल्लिक ना हो, उसका डिनाई कैसे करें? देखो ये फर्क है. एक बार जो पहले पॉइंट रखा है ना, पहले समझ लो. इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी में रेफरेंस की 2-3 पॉइंट्स हैं जो डेफिनेशंस नहीं हैं, टर्मिनोलॉजीज की बेस नहीं पता, ग्रिप नहीं है. इसलिए जब तुम आए थे मैंने कहा था तुम्हारी ग्रिप नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी, अल्लाह ने कुरान में क्या फौका कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम, एक से बढ़कर इल्म रखने वाला है. हो सकता है कई चीजों का मुझे ना पता हो, मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले हो. अब देखो बात पता है क्या, तुम्हें इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी की प्रेफरेंसेस का नहीं पता कि इनकी तरतीब क्या है. तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पता नहीं खेल रहा होता, नल्ले पे दला, अगर मैं दुकी मार दूं तो तुम यक्का फेंकना, अगर मैं पान का पता फेंकूं तुम ईंट का पता फेंकना. ये कार्ड्स नहीं है. हदीस के अंदर ऐसे नहीं होता कि अगर मैंने हसन पेश की तो तुम उसके मुकाबले में सही पेश करोगी तो वो क्रॉस हो जाएगी. ये गेम नहीं है. इसकी तरतीब क्या है, इसकी प्रेफरेंसेस को समझो. खबर अहाद जो हैं वो अकायद के मामले के अंदर हुज्जत नहीं होती. खबर अहाद को मैं खबर के मामले के अंदर या फरुआत के मामले के अंदर तो मैं हुज्जत मान सकता हूं तब जब वो मुतवातरा के साथ और दलील कतई के साथ न टकराते हों. जैसे कुरान है, उसूल अव्वल, यानी इस्लाम में दलील की 4 उसूल हैं, उसूल अरबा, कुरान, सुन्ना, इजमा और क़ियास. इन 4 के ऊपर जो हैं, और ये 2 जो हैं ये कशीद किए हुए हैं कुरान और सुन्ना से, यानी कुरान और सुन्ना से ही इसकी दलील मिलती है. तो मिसाल के तौर पर तुम खबर, मैं शॉर्ट कर देता हूं, तुम फिर कहते हो लंबी बात है, शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि बेस बनाना बड़ा जरूरी है. अच्छा, शॉर्ट ये है कि खबर अहाद मिसाल के तौर पर तुम मेरे सामने पेश करते हो, एक सनद, एक हदीस पेश करते हो जो खबर वाहिद है. तुम कह रहे हो खबर वाहिद को तुम डिनाई कैसे करोगे. मैं उसकी सनद के ऊपर जरा देखूंगा, ठीक है. अगर वो सनदन तुम्हारे सामने मरफू मुत्तसिल मुझे नजर आई, यानी तुम एक हदीस पेश करते हो जो मरफू मुत्तसिल है, तो मैं उसकी सनद देखूंगा, इसकी सनद के ऊपर किसी रावी में जरा तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका. तुमने जब मुझे तारीख की किसी या तफसीर की किसी किताब में से कोई ऐसी रवायत पेश करोगे जिसकी सनद नहीं है, वो सिरे से रद्द हो जाएगी. जब तुम मुझे कोई रवायत पेश करोगे जिसकी सनद मौजूद है तो उसकी सनद के ऊपर बहस होगी. जब उसकी सनद ठीक निकल आएगी तो मैं उसके मतन के ऊपर बहस करूंगा और उस मतन को कंपैरेटिवली एनालाइज करूंगा. वो मेरे जिम्मे होगा, उसकी टेंशन तुम्हारी खत्म हो. तुम्हारे जिम्मे पता क्या, मैं ये तो कह रहा हूं तुम्हारे जिम्मे 4 काम हैं जब तुमने दलील पेश करनी है. दलील की तफसीलात, इस्तदलाल, उसकी कतईयत, उसकी सनद मरफू मुत्तसिल होना. ये तुमने जब पेश कर दी उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा. मैं उसके ऊपर जरा करूंगा, उसकी सनद के ऊपर, उसकी मतन के ऊपर, और ये साबित करूंगा कि आया क्यों मैं इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं. ये किसके साथ टकराती है. अब गलत फहमी तुम्हें पता क्या हो रही है, तुम्हें यह लग रहा है कि खबर अहाद चूंकि एक ही बंदे से पहुंची जाएगी तो तुम उसको डिनाई कैसे दूसरों के साथ करोगे. इस तरह डिनाई करूंगा कि जब वो खबर वाहिद ऐसी बात बयान कर रहा हो जिसका तवातुर से छुपा रहना महाल हो, इम्पॉसिबल हो. मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदकुशी करने का वाकया, ये बुखारी के अंदर नकल किया गया है, और ज्यादातर लोग जो मुल्हिदीन और मुनकरीन और मुर्तदीन है वो ये समझते हैं कि गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी ये पूरी हदीस है कि वो खुदकुशी कर रहे थे. वहां एक छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि अरबी हमारे लोगों को आती नहीं है अफसोस के साथ, वो बीच में बुलिगू के अल्फाज हैं कि जोहरी, इमाम जोहरी शहाब इब्ने शहाब जोहरी कहते हैं बुलिगू, मुझ तक ऐसी बात पहुंची है, यानी उनको भी कन्फर्म नहीं है कि ये किस सनद से पहुंची है. अब इसे कहते हैं खबर वाहिद. अब किसी और जगह पर इस वाक़े को इस तरीके से नकल नहीं किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खुदकुशी करने की कोशिश की हो. ये एक मिसाल दी है मैंने तुम्हें, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये ऐसा वाक़या है कि इसके बरअक्स कुरान से आयतें मिलती हैं, इसके बरअक्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और कॉन्फिडेंस मिलता है, इसके बरअक्स ये इतना मशहूर वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने की कोशिश की और सिर्फ एक बंदा बयान कर रहा है, एक रवायत. ये तो फैल जानी चाहिए थी जंगल में आग की तरह. ये है उसूल.
ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ میں نے ایک مثال دی ہے. تو خبر واحد جب پیش کرو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا, ویریفائی کیا جا سکتا. دیکھیے میں نے آپ سے ابھی یہ پوچھا اخبار احد اور اخبار واحد, سمیر اس کو ان دونوں کا ڈینائے آپ شروع کرنے سے پہلے ایک سن لو, شروع کرنے پہلے سن لو سمیر, اس کو کنکلوڈ کرو. میں نے ایک شرط تمہارے سامنے رکھ دی ہے, تم اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر جا رہے ہو, بات پھنس رہی ہے. میں نے تمہیں کہہ دیا اس شرط کو رکھ لو, جو شرط میں نے مانی ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تم تفسیر ٹھیک ہے, اس کا بہت سمپل سا طریقہ یہ ہے, اس کا بہت سمپل سا طریقہ یہ ہے ختم کرنے کا. ماڈریٹر کی اپنی بات ہو گئی ہے اور فرسٹ اسپیکر اور سیکنڈ اسپیکر کی اپنی بات ہو گئی ہے. اب رہا سوال یہ تاریخ اور تفسیر کے متعلق, تو میں وہ تاریخ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا جس تاریخ اور جو تفسیر کے اندر جو ہے نا کانٹرڈکشن نہ ہو قرآنی آیتیں اور احادیث کے ساتھ. اگر میں ایسی کوئی پیش کرتا ہوں آپ کو تاریخ یا پھر تفسیر جو قرآنی آیتوں کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتی ہو, تو آپ کو قرآنی آیت یا پھر وہ احادیث مجھے پیش کر کے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. ویری سمپل. صرف یہ نہیں, تمہاری شرط میری پوری سنو. دیکھو تسلی سے اس کو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, دوبارہ ایک بار سن لو. صرف یہ چیز نہیں کہ وہ قرآن اور سنت سے کانٹرڈکٹ کرتی ہو, میں بات یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ چیز سندن مرفوعاً متصل ہو. یہ چیز پیش کرنی ضروری ہے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا ہے یا کسی امام نے, مجاہد نے, قتادہ نے, ابن اسحاق نے, عامر حق صاحب. اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر بخاری اور صحیح مسلم کی جو شرائط ہیں ان پر کوئی احادیث پوری اترتی ہے تو آپ اس کو مانو گے؟ نہیں مطلق. یہ دیکھو میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط جو ہیں ان پر ایک کتاب اکٹھی کی گئی جس کو کہتے ہیں مستدرک حاکم, یعنی المستدرک علی الصحیحین. امام زاہبی نے اس کی تعلیق لگائی. کتنی جگہ پر امام زاہبی نے ان کی حدیثوں پر جرح کیا, یعنی المستدرک علی الصحیحین جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرائط جو ہیں ان پر بھی تنقید موجود ہے. مستدرک کی تحقیق کی, مثال کے طور پر امام زاہبی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بعض جگہ پر تعلیق کی ہے, تصدیق کی ہے کہ آیا ان شرطوں پر پوری ہیں, بعض جگہ پر کہا ہے وہ نہیں ان شرطوں پر پوری نہیں ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, مستدرک علی الصحیحین جو امام حاکم النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اس کتاب کے اندر بہت سے موقوف اور مقطوع اقوال بھی ہیں, معلل اقوال بھی ہیں. اس کی مثال میں نے ایک جگہ پر پروگرام میں دی تھی کہ ابن عباس نے تفسیر کر دی کہ دنیا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اوپر ہے, اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو صحیح بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا گیا ہے. اب اس کے اوپر جرح موجود ہے کہ قرآن کی نہ آیت کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے, ابن عباس کی اپنی تفسیر ہے اور ان کی طرح منسوب کیا ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں ان کتابوں کے اندر موجود ہے. بات نہیں, مرفوع یہ عربی زبان میں رفع والا مرفوع نہیں ہے, یہ مرفوع علم الحدیث کی اصطلاح ہے. مرفوع اصطلاح کے اندر کہتے ہیں جس سے مراد ہوتی ہے کسی سند کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل پہنچنا. مثال کے طور پہ امام بخاری کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا, میں نے اپنے استاد سے سنا, کرتے کرتے صحابی, اور صحابی کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا, اس کو کہتے ہیں مرفوع. اور موقوف روایت کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا, اس نے اپنے استاد سے سنا, اور صحابی تک, بس اس کو کہتے ہیں موقوف. اور مرسل روایت ہوتی ہے جس میں تابعی صحابی کو مس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے. موقوف کہتے ہیں ایسی اور مرسل کہتے ہیں ایسی روایت کو جس میں تابعی صحابی کو گرا کے ڈائریکٹ نبی سے بات کرے, یا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو مراسیل صحابی کہتے ہیں یا مراسیل تابعی کہتے ہیں. مدلس کہتے ہیں ایسے بندے کو جو راوی کو بیچ میں سے گرا دے. اب تم مجھے کوئی روایت پیش کرو گے جو بخاری کے اندر ہے, اس میں بعض جگہ پر ابن شہاب کی تدلیس موجود ہے, سفیان ثوری کی تدلیس موجود ہے, سفیان ابن عیینہ کی تدلیس موجود ہے, تو ایسی تدلیس کو میں رد کروں گا. تمہیں نظر آ رہا ہوگا میں نے بخاری کی حدیث پیش کی ہے, مگر اس کے اوپر جرح موجود ہے, اس کی تعلیل موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے سامنے بڑا ضروری ہے. میں نے اس لیے بار بار مرفوع جو ورڈ بول رہا تھا, میں نے کہا میں بتا دوں اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں. مرفوع متصل, متصل کا مطلب ہوتا ہے کسی سند کا بیچ میں سے کوئی واسطہ بھی ٹوٹا نہ ہو. مثال کے طور پہ امام بخاری کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے, اپنے استاد سے, اور بیچ میں کوئی ایک راوی بھی نہ گرے, اس کو کہتے ہیں متصل. مرفوع, متصل, مسند, دلیل قطعی, اس کو صاحب تو میں مان لوں گا اس کو. اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ, آپ کے محمد رسول اللہ کو علم رجال آتا تھا؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آتا تھا. اچھا ثابت کریں مجھے. ثابت, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 6 ہے, حکم بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس یہ لوگ آئیں کو خبر لے کر اس کی چھان پٹک کیا کریں. چھان پٹک کرنے کا طریقہ سورہ شورا اتارنے کے بعد بیان کیا کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے کہ کس بندے کو کس طرف اپوائنٹ کیا جائے یا کیا معاملہ کیا جائے. آپ نے بہت سی جگہ پر جرح و تعدیل کے اصول کو اپناتے ہوئے کہا چونکہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے لہذا یہ اس کام کا مجرم بنے گا.
ٹھیک ہے, یا یہ ایک بندہ یہ کام کرتا ہے وہ اس چیز کا مجرم ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کے اندر کہا جو بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے, اور جو بندہ مسلسل سچ بولتا ہے اس کو سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو جرح و تعدیل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کذب اور صدق کی بات ہوتی ہے جس میں حافظے اور عدل کی بات ہوتی ہے. تو قرآن سے علم جرح و تعدیل نکلا تھا. تو جب محمد رسول اللہ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی باتیں کیسے بتائی میرے بھائی؟ اب یہ چیز ہاں میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تم یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سند متصل کہاں سے ملی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا واقعہ کے لیے سند متصل, یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ وہاں سند جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ متصل ہے. اب یہ وہ موضوع ہے جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے وہاں